Dear students, today we are going to study about the environment. As we know that environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessel and land is used to build factories. Human beings make cars, million factories and the manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि जो पर्यावरण है, हम अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे देखते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट है और मनुष्य के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स हैं. तो बिकॉज all the students study about this topic in a previous class. Now in this we study that in a class Ravi asked his teacher, what is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. क्लास में रवि ने अपने टीचर से कहा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? तो व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर. टीचर ने कहा कि अपने चारों तरफ आप क्या देखते हैं? तो रवि थॉट्स अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. रवि ने सोचा और कहा, हम अपने चारों तरफ जो वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, टेबल हो, चेयर हो, क्लासरूम हो या खुले हुए मैदान हैं, रोड्स हैं, गार्बेज हैं, ये सभी पार्ट्स एनवायरनमेंट के हैं. तो एनवायरनमेंट में जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट्स हैं, हम उनके लिए देखते हैं, चाहे वो ट्रीज हो या ह्यूमन मेड थिंग्स हो. यस, सेड द टीचर. टीचर ने कहा, हाँ, व्हाट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर आर मेड पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लॉथ्स, बुक्स. जो नेचुरल के द्वारा क्रिएट की गई हैं उसमें माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, और जो व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हैं उसमें रोड्स, कार, क्लॉथ और बुक्स हैं. द नेचुरल थिंग्स आर गिवन टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द ह्यूमन बीइंग्स modify by using the technology, and they made the roads, buildings, parks, clothes, books, etc. Now work in pairs, make a list with our classmates sitting next to you of the creation of natural and by the human beings. Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asa were all excited about making a list. Why is the our environment changing? हमारे पर्यावरण में क्या चीज परिवर्तित हो रही हैं? Asked Iqbal, it's all the because of our needs. They are our nature environments. Increasing day by day, we are therefore modifying and all times even destroying our natural surroundings, teacher replied.
टीचर ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दिन व दिन प्राकृतिक चीजें जो हमारे आसपास हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उनको नष्ट करते जा रहे हैं. From of the above the conservations you understand that the place as the vital and the aviatic things. The vital things, the living world, organisms, plants and the animals, and aviatic, the world of non-living elements as land. जो वाइटिक जैविक तत्व हैं, जैवीय जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित हैं, वह जैविक हैं, और अजैविक जिसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, जो नॉन लिविंग हैं, ये अजैविक. नेचुरल इन्वायरमेंट. नाउ talk about the natural environment, land, water, air, plants and the animals. Compares the natural environment. Natural environment जो है land, water, air और plants and animals के द्वारा बनाया गया है. You are the familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the biosphere from our previous class. Let us learn some more facts about these domains. At first we talk about the lithosphere. It is the solid crust or the hard top layer of the earth. ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली सबसे हार्ड, सबसे ऊपर कठोर एक परत है. It is the made up of the rock and the minerals and covered by the thin layer of soil. जो रॉक्स और मिनरल्स की बनी हुई है और जो मिट्टी की एक परत, एक पतली मिट्टी की पतली परत इस पर चढ़ी हुई है. It is the regular surface with various landforms such as the mountains, plateaus, plains, valleys, etc. बहुत सारे चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज, ये सभी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटेनर and also the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland or grazing land or the agriculture and human settlements. It is the also source of the mineral wealth. लिथोस्फीयर पर ही हम देखते हैं, हम अपने जीवन को जीते हैं. फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, ये सभी चीजें हमें लिथोस्फीयर पर ही मिलती हैं. द डोमेन्स ऑफ द वाटर इज referred as the hydrosphere. It compares various sources of water and different type of water bodies like rivers. लिथोस्फीयर में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के तालाब, नदी, झरने, ये सभी चीजें हमें, सागर, महासागर, ये सभी चीजें हम लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में देखते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हर जीवित व्यक्ति के लिए आवश्यक है. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है वो हवा की, जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और एक हवा का आवरण है जो हमें, हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज. एज वी नो, अंडरस्टैंड दैट द diagram, the lithosphere, hydrosphere, biosphere and the atmosphere. Lithosphere, the life is possible and all the living beings lived in lithosphere is the hard crust of soil, and the lithosphere and the hydrosphere, there are the, you see that some
water bodies on the earth as the river, pond, seas, ocean is lithosphere. Now, the form of the harmful rays and the surroundings heats, and we know is about the ecosystem, plants and the animals kingdom together make a बायोस्फीयर. हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं. जो भी लिविंग वर्ड्स है उसको बनाते हैं. इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and the air interact with other its life support. In the ecosystems at an NCC camp that Ravi's class was tending, Jesse exclaimed, "What a heavy, drawn poor! It reminds me of my home in Kerala. You should come to see how it is poor and the pours over the lush green fields and the account plantations." Hiras from Jasmiller exclaimed, "Dad, get the rains we see only." And as we know, the pound ecosystem, as we understand that the all plants, animal and the human beings depend on their immediate surroundings. जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स ये जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. जो उनके चारों तरफ चीजें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, आश्रित होती हैं. Ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer or energy and materials. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी उत्पत्ति जीवित जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके इंटरेक्शन में होती है. यानी जो इकोसिस्टम है वो एक जीवित पेड़ पौधों का, जीवित पशुओं का एक ऑर्गेनिज्म है. As we know and now we define as the human environment. अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में देखें कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है. ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमने देखा कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट्स हैं कि इंटरेक्ट विद अदर इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन इन्वायरमेंट में व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में चेंजेस करता है. अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग. आपने अर्ली ह्यूमन बीइंग्स देखे, जो आदिवासी लोग, जो प्राचीन लोग थे, वो किस तरह से अपने जो प्राकृतिक चीजें थी उनके सराउंडिंग में रहते थे, किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट उस समय करते थे. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. और अपनी जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को प्रकृति से किस प्रकार से ग्रहण करते थे. यानी प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध थी उन चीजों से अपनी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते थे. ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड द चेंज environment, and now after the changing the time and the technology is come, the human beings use the technology and fulfill their needs
by using it, and they learn to grow crops, democratic environment. They learn to grow crops, animals, and lead the settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, water system enhanced, trade started, and commerce developed. Industrial revolutions enable large scale productions, transportations became faster, informations revolution and made communication easier and speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in a summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environments. Human must learn to live and use their environment in harmless way. किस तरह से व्यक्ति अब इंटरेस्ट अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है बहुत सारी ऐसे वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है। और अब आप देखते हैं कि जब पहले व्हील का इन्वेंशन किया गया था, उसके बाद फूड में जो क्रॉप्स थी उसका प्रोडक्शन हुआ, और वेटर सिस्टम इज नेक्स्ट, ट्रेड द सिस्टम, कॉमर्स डेवलपमेंट। और कॉमर्स डेवलपमेंट यहाँ पर जो व्यवसाय था वो व्यवसाय शुरू हुआ, किया गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांतियां हैं, औद्योगिक क्रांतियों के कारण, औद्योगों के विस्तार के कारण जो स्केल है प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्शन का स्केल अब बढ़ता गया। ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, यातायात के संसाधन हैं, उन यातायात के संसाधनों में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, संचार की एक क्रांति आई, कम्युनिकेशन बहुत आसान हुआ, और एक तरह से इस संसार में ये बहुत ही तीव्र गति से जो प्रोग्रेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और कम्युनिकेशन का चल रहा है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में हम इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इनका स्टडी करते हैं। और नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसमें लैंड, एयर, वाटर, इनको मैन मेड जो थिंग्स हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं, इसमें रोड, ब्रिज, पार्क, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। ये सभी प्रकार की चीजें व्यक्ति